فرنٹ پیج میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ہوں آپ کا میزبان شکیل بلوچ۔ ناظرین، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ کافی اہمیت کا حامل موضوع ہے اور وہ موضوع ہے پورے پنجاب میں پھیلے ہوئے خسرہ بیماری کے حوالے سے۔ اس وقت بچوں کی بہت بڑی تعداد پورے پنجاب میں خسرہ کے بیماریوں کا مقابلہ کر رہی ہے اور اس کے ہاتھوں ہلاکتوں کا بھی شکار ہو رہی ہے۔ پچھلے چند روز قبل ہی خانیوال میں 6 بچوں کے خسرہ کی وجہ سے ہلاکت کا تکلیف دہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد 2 منسٹر ہیں ہیلتھ کے اور وہ دونوں خانیوال پہنچے، کبیر والا پہنچے اور سیکٹری ہیلتھ علی جان بھی ان کے ساتھ تھے۔ منسٹرز نے خانیوال کے دورے کے دوران ابتدائی طور پر 3 ڈاکٹرز کو جو انتظامی عہدوں پر تعینات تھے معطل کر دیا۔ معطل ہونے والوں میں CEO ہیلتھ خانیوال ڈاکٹر عبدالمجید، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز ڈاکٹر فضل الرحمان بلال اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کبیر والا ڈاکٹر عالم شیر شامل تھے۔ صوبائی وزیر عمران نذیر نے تینوں افسروں کو سسپینڈ کرنے کے احکامات جاری کیے اور ان کے خلاف انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ صوبائی وزیر عمران نذیر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کبیر والا میں 48 خسرے کے کیسز رپورٹ ہوئے تھے، تاہم جو ہیلتھ انتظامیہ متعلقہ ڈاکٹر انتظامی افسران انہوں نے محکمے کو اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں دی۔ واضح رہے کہ بچوں کی ہلاکتوں کی خبر پہلے پہل سوشل میڈیا پر آئی تھی، جس کے بعد پنجاب حکومت متحرک ہوئی اور دونوں منسٹرز خانیوال پہنچے۔ دونوں منسٹرز اور سیکٹری کے دورے کو آج کافی دن ہو گئے ہیں، لیکن تاحال جو کبیر والا سے ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق کبیر والا میں ابھی تک ویکسینیشن کمپین شروع نہیں کی جا سکی ہے۔ تحصیل کبیر والا کی 33 یونین کونسلز ہیں۔ دونوں وزراء اور سیکٹری ہیلتھ کبیر والا کا دورہ کر رہے تھے تو انہیں ایک شخص نے بتایا کہ انہوں نے سفارش کرا کر CEO ہیلتھ کے دفتر سے فون کروایا تھا متعلقہ ویکسینیٹر کو کہ ان کے بچوں کو ویکسین کر دی جائے۔ ویکسینیٹر ان کے ساتھ طلب کلامی سے پیش آئے، انہیں دھمکیاں دی اور انہیں بتایا کہ انہیں سیاسی حمایت حاصل ہے۔ مذکورہ شخص کی اس ویکسینیٹر کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی وہ گفتگو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئی تھی۔ ہلاک ہونے والے 6 کے 6 بچے ایک ہی علاقہ کسی 3 کے رہائشی تھے اور ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 22 مئی کو ان 6 بچوں کی ہلاکت کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس کے بعد پنجاب حکومت کی آنکھ کھلی اور ان کے وزراء ملتان پہنچے اور ملتان سے پھر وہ کبیر والا گئے۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ڈائریز ریکارڈ کے مطابق یہ 6 کے 6 بچے ویکسینیٹڈ تھے اور ان کو خسرہ کی ویکسین دی گئی تھی۔ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ محکمہ ہیلتھ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام بچے ویکسینیٹڈ تھے، لیکن اس کے باوجود ویکسینیٹر کے خلاف اور CEO کے خلاف اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے خلاف اور اسی طریقے سے پریونٹیو ہیلتھ سروسز کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فضل الرحمان بلال کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ قصبہ بہنی 3 کسی جس یونین کونسل میں ہے اس کا نمبر 49 ہے، یونین کونسل 49 میں یہ تمام کے تمام بچوں کی ہلاکتیں ہوئی۔ سوشل میڈیا پر ان ہلاکتوں کے اطلاع 22 مئی کو دی گئی تو 23 مئی کو ایک ٹیم خانیوال سے فوری طور پر کبیر والا پہنچی۔ ریپڈ ریسپانس 5 ٹیم نے گھر گھر جا کر بچوں کو چیک کیا اور ان کو 6 مزید ایسے بچے مل گئے جن میں خسرے کی علامات پائی جاتی تھی، لہذا ان بچوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر کبیر والا منتقل کر دیا گیا۔ علاقے میں میڈیکل کیمپ لگا دیے گئے اور بچوں کی ویکسینیشن شروع کر دی گئی۔ یونین کونسل کے پھر ایسے تمام بچوں کو ویکسینیٹ کیا گیا جنہیں پہلے سے ویکسین نہیں لگی ہوئی تھی۔ 3 کسی سیدہ والے کے یہ 6 بچے خسرہ کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور منسٹرز بھی یہاں پہنچ گئے اور سیکٹری ہیلتھ بھی یہاں پہنچ گئے اور انکوائریز کا بھی احکامات جاری کر دیے گئے، لیکن جب معلومات لی گئی اور متاثرہ فیملیز تھی ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ بچوں کو ٹریٹمنٹ کے لیے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھی لے کر گئے تھے تو ان کو پھر وہاں سے گھر بھیج دیا گیا، جس کے بعد ان بچوں کی ہلاکت واقع ہو گئی۔ اس سلسلے میں دونوں منسٹر ہسپتال انتظامیہ کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کرنے میں ناکام رہے۔ پنجاب کے سیکٹری ہیلتھ علی جان خان صاحب ہیں۔ دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، جس میں پہلا حصے کو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا نام دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے
हिस्से को स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का नाम दिया गया है। और पंजाब हुकूमत ने इस सिलसिले में 2 वज़रा को तैनात कर रखा है। एक वजीर इमरान नजीर साहब हैं जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के वजीर हैं, जबकि दूसरे शोबे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के वजीर ख्वाजा सलमान रफीक हैं। ताम हैरान कौन बात यह है, वजीर तो 2 लगाए गए हैं लेकिन सेक्रेटरी सिर्फ एक काम कर रहा है और वो मोहतरम अली जान साहब हैं। अली जान साहब 2008 से शरीफ फैमिली के चहेते हैं। पंजाब के सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान साहब हैं। और दिलचस्प और हैरान कौन बात यह है कि हुकूमत पंजाब ने हेल्थ डिपार्टमेंट को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, जिसमें पहला हिस्से को प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का नाम दिया गया है, जबकि दूसरे हिस्से को स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का नाम दिया गया है। और पंजाब हुकूमत ने इस सिलसिले में 2 वज़रा को तैनात कर रखा है। एक वजीर इमरान नजीर साहब हैं जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के वजीर हैं, जबकि दूसरे शोबे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के वजीर ख्वाजा सलमान रफीक हैं। ताम हैरान कौन बात यह है, वजीर तो 2 लगाए गए हैं लेकिन सेक्रेटरी सिर्फ एक काम कर रहा है और वो मोहतरम अली जान साहब हैं। अली जान साहब 2008 से शरीफ फैमिली के चहेते हैं और जब भी 2008 से ही वो हेल्थ के मामला देखते आ रहे हैं। जब जब पंजाब में नून लीग की हुकूमत आती है, अली जान साहब के पास हेल्थ के तमाम तर मामला चले जाते हैं। अली जान ने डिपार्टमेंट पर अपनी ग्रिप मजबूत की हुई है, यहाँ तक के उन्होंने शोबे में कोई सेक्रेटरी भी लगने नहीं दिया। इसी तरीके से साउथ पंजाब सेक्रेटरीट में भी उन्होंने अपनी ग्रिप मजबूत की हुई है और वो साउथ पंजाब में जो सेक्रेटरीज तैनात हैं या जो सेक्रेटरीट कायम है, उस सेक्रेटरी हेल्थ से मुतल्लिका जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने उन्हें उज़्व मुअत्तल बनाकर रख दिया है। उनके पास कोई अख्तियारात नहीं है। यहाँ तक कि अली जान इस हद तक उनकी तज़हीक करते हैं कि जब वो मुल्तान में आते हैं तो वो उन सेक्रेटरी से मिलना गवारा नहीं करते, उनको अपने साथ ले जाना भी गवारा नहीं करते। साउथ पंजाब से मुताल्लिक हेल्थ के मामलात के हवाले से जब कोई मीटिंग होती है तो उसमें सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब को कोई राय को कोई अहमियत नहीं दी जाती, ना ही उन्हें बुलाने का तरद्दुद किया जाता है। जब मुल्तान का विजिट करते हैं अली जान साहब और जहां भी जाते हैं तो वो उस मुतल्लिका सेक्रेटरी को इग्नोर करके रख देते हैं, जिसकी वजह से उनकी तरफ से ये मैसेज आता है कि जो भी तमाम मामलात हैं वो उनके कंट्रोल में है और साउथ पंजाब सेक्रेटरीट के लोगों को उन्होंने बिल्कुल फारिग करके रख दिया है। खानेवाल में जहां अस्पताल के एमएस के खिलाफ और मुतल्लिका डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी, वहीं जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसने तमाम मामला देखने होते हैं, जिसने वैक्सीनेशन के तमाम प्रोसेस को देखना होता है, वो डिप्टी कमिश्नर होता है। और वो डिप्टी कमिश्नर जो उस वक्त खानेवाल में तैनात थे, वसीम अहमद सिंधु साहब को इनाम के तौर पर मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर तैनात उस वक्त कर दिया गया जब 6 बच्चों की ये हलाकतें उनके होते हुए वहां पर हो चुकी थी और इसको चंद दिन हुए थे उन बच्चों की हलाकतों को और उनको मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिया गया। वो जूनियर अफसर हैं, 18वें ग्रेड के अफसर हैं और उनको 19वें ग्रेड की पोस्ट पर डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि माजी में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को मुख्तलिफ खास तौर पर यूएस के लोगों की जब समरी 18वें ग्रेड के लोगों की डिप्टी कमिश्नर के लिए जाती थी तो वो कहते थे कि 18वां ग्रेड बहुत जूनियर अफसर होता है और 18वें ग्रेड के जूनियर अफसर को मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन जब पास का एक अफसर आता है तो उनको सीनियरिटी और जूनियर का तमीज खत्म हो जाती है और वो पास के अफसर को बड़ी खुशी से 18वें ग्रेड के अफसर को मुल्तान में बतौर डिप्टी कमिश्नर तैनात कर देते हैं और उस पर कोई इतराज नहीं करते। MSTHQ कबीरवाला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरीके से जिन डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट में गफलत की या ट्रीटमेंट नहीं दी उनके खिलाफ भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। आपको बताना चलूं कि 2008 से अली जान के पास हेल्थ डिपार्टमेंट है और 2008 से लेकर आज तक इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट की ऐसी तैसी करके रख दी है। हर तरफ मसाइल हैं, जो भी इन मसाइल की तरफ निशानदही करता है उन मसाइल के हवाले से बात करना चाहता है पर बात करने की कोशिश करता है, अली जान उनके खिलाफ हो जाता है। अली जान साहब ने साउथ पंजाब सेक्रेटरीट को गैर मुअस्सर करने में सबसे अहम किरदार अदा किया है। जब से वो सेक्रेटरी बने हैं उन्होंने साउथ पंजाब सेक्रेटरीट में तैनात दोनों सेक्रेटरियों के अख्तियारात
सल्व कर रखे थे और वो मुसलसल उनको किसी किस्म के काम करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। और ये इस कदर मौसर और ताकतवर हैं अली जान साहब के, इन्होंने जो स्पेशल सेक्रेटरी लगवाया है, सेक्रेटरीज की जगह पर अब स्पेशल सेक्रेटरी तैनात किए गए हैं। उन्होंने उन स्पेशल सेक्रेटरीज को भी मुल्तान नहीं आने दिया। वो स्पेशल सेक्रेटरी, एक स्पेशल सेक्रेटरी जो लगाया गया है, जबकि दूसरे जो सेक्रेटरी हैं अफजल नासिर साहब, वो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हैं और अफजल नासिर साहब को भी अली जान ने बिल्कुल गैर मुसर करके रख दिया हुआ है और उनको किसी भी मीटिंग में भी बुलाते नहीं है, उनसे कोई फीडबैक भी नहीं लेते। तमाम मामलात अली जान अपनी मर्जी से करते हैं और अफजल नासिर महज बेबसी से उनकी शक्ल और इन सारे मामलात को देखते रहते हैं। अफजल नासिर साहब सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन है, जबकि कुछ अरसे से सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की सीट साउथ पंजाब की खाली चली आ रही थी। उसकी जगह पर हुकूमत पंजाब की नई पॉलिसी के तहत जितनी भी सेक्रेटरीज की पोस्ट खाली थी उन सब पर स्पेशल सेक्रेटरीज तैनात किए गए हैं, जो लाहौर के सेक्रेटरी को जवाबदेह होंगे और उनको तमाम मामलात उनके कंट्रोल में दे दिए गए हैं। साउथ पंजाब के सेक्रेटरीज के अख्तियारात खत्म करके इस तरीके से तमाम के तमाम अख्तियारात लाहौर में बैठे हुए सेक्रेटरीज के पास चले गए हैं। अब जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर हैं उनका नाम है राशिद इरशाद साहब, एक पीएमएस अफसर हैं और काफी अरसे से अली जान साहब की कोर टीम का हिस्सा हैं, इसलिए उनको स्पेशल सेक्रेटरी साउथ पंजाब तैनात किया गया है। वो यहाँ मुल्तान में जरूर आए हैं, एक दिन के लिए आए हैं, वो अपनी तैनाती देकर उसके बाद वापस मुल्तान का उन्होंने रुख नहीं किया, ना ही वो रुख करेंगे, क्योंकि जो जराए हैं उनके मुताबिक अली जान ने उनको इस बात की इजाजत नहीं दी हुई कि वो मुल्तान में बैठें या मुल्तान के मामलात में किसी किस्म की दखल अंदाजी करें। अमली तौर पर साउथ पंजाब सेक्रेटरीट के दोनों सेक्रेटरीट खत्म हो चुका है। दोनों हेल्थ सेक्रेटरीज किसी किस्म के किसी भी इंतजामी मामलात में ना तो उनका कोई रोल है, ना उनकी कोई सुपरविजन है, ना वो किसी किस्म की कोई रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, ना वो कहीं का विजिट कर सकते हैं, बल्कि वो सिर्फ महज उनको बराए नाम ओहदा दिया गया है और वो यहाँ बैठे हुए हैं। स्पेशल सेक्रेटरीज भी लाहौर में बैठे हुए हैं। तो अली जान ने साउथ पंजाब का भी हेल्थ के दोनों जो शोबे हैं उनके मामलात अपने हाथ में कर लिए हैं। ब्यूरोक्रेसी के शादरा ग्रुप का अहम रुकन है। शादरा ग्रुप के दो अहम लोग हैं जो इस वक्त शरीफ फैमिली के बहुत ज्यादा करीब है। शादरा ग्रुप बुनियादी तौर पर ब्यूरोक्रेसी का शादरा ग्रुप वो ग्रुप है जो शरीफ फैमिली के बहुत करीब होता है और शरीफ फैमिली के दौर हुकूमत में वो हुकूमती मामलात को चलाता है। शादरा ग्रुप में भी दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप की क़यादत अली जान करता है जबकि दूसरे ग्रुप की नबील अवान करता है। नबील अवान भी सेक्रेटरी हेल्थ रहे हैं फॉर सम टाइम और इस हवाले से काफी खींचातानी चलती रही है अली जान के साथ। बुज़दार दौर में थोड़े अरसे के लिए अली जान को हेल्थ की मामला से दूर कर दिया गया था, तो जब बुज़दार दौर खत्म होता है तो नून लीग थोड़ा सा भी असर रसूख बनता है तो अली जान एक मरतबा फिर हेल्थ के तमाम मामला संभाल लेते हैं। और इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत सारा बेतहाशा मसाइल का सामना कर रहा है। अरबों रुपए हॉस्पिटल्स की रेनोवेशन पर लगाए जा रहे हैं, मरीजों को मेडिसिन नहीं मिल रही, वैक्सीन हॉस्पिटल में दस्तयाब नहीं है। तमाम के तमाम मामलात अली जान ने अपनी ग्रिप में लिए हुए हैं। कोई बंदा उनसे कोई बात नहीं कर सकता। पीएमए जो डॉक्टर्स की नुमाइंदा तंजीमें हैं वो खामोश हैं, जो पीएमए समेत बाकी दीगर तंजीमें भी खामोश हैं, क्योंकि वो अली जान के इंतकामी रवैयों से खाइफ हैं कि अली जान उनके खिलाफ कार्रवाइयों में लग जाएगा। अभी खानेवाल वाला मामला ठंडा नहीं हुआ था और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी मुकम्मल नहीं हुई और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनको मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर बनाकर भेज दिया गया, तो एक और नए मसले ने सर उठा लिया। मुल्तान में वसीम हामिद सिंधु साहब के डिप्टी कमिश्नर तैनात होते ही एक नए स्कैंडल ने जन्म लिया है। मुल्तान में एक फरीदाबाद सेंटर से खसरा वैक्सीन की 5000 वायर्स 5000 खुराकें डंप की हुई पकड़ी गई हैं। अब तक मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक 2 भाई हैं मुल्तान में जो इस वक्त डिप्टी डीओ लगे हुए हैं। एक डिप्टी डीओ सिटी हैं और दूसरे डिप्टी डीओ सदर हैं। एक भाई का नाम अब्दुल्ला आसिफ है जबकि दूसरे भाई का नाम तैमूर खान है। ये दोनों भाई कमोबेश 2 साल से डिप्टी डीओ लगे हुए हैं मुल्तान में और इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये है कि ये जो अताई है
कोएक्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी होती हैं। इन्होंने इनके बारे में जो मुख्तलिफ ज़राए इल्ज़ामात लगाते हैं, हर माह लाखों रुपए कोएक्स से उनके खिलाफ कार्रवाइयों करके उनसे वसूल करते हैं और फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। ताहम तैमूर के मुताबिक पिछले महीने उन्होंने 15 कोएक्स के खिलाफ रिपोर्ट पब्लिक हेल्थ केयर कमीशन को भेजी है। उनका कहना था कि उनके हवाले से लगाए जाने वाले तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और वो कहीं से भी किसी किस्म के पैसे नहीं पकड़ते और कोएक्स के खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है वो खालिसतन इंतज़ामी मामला होता है और उसमें किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाती। ज़राए के मुताबिक डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल राव आलमगीर ने मुल्तान का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान उन्होंने रहीमाबाद सेंटर और मुमताज़ाबाद सेंटर जो कि इन दोनों डॉक्टर भाइयों के कंट्रोल में है उनका विजिट किया। रहीमाबाद सेंटर के दौरे के दौरान राव आलमगीर को 5000 के करीब खसरा वैक्सीन की खुराकें डंप की हुई मिलती हैं। जब वो उनसे पूछते हैं कि भाई ये किस लिए वैक्सीन है तो वो डॉक्टर और वहाँ का जो वैक्सीनेटर था कोई खातिर खा जवाब नहीं दे पाते, जिसके बाद राव आलमगीर लाहौर जाकर सेक्रेटरी हेल्थ अली जान को इस सिलसिले में आगाह करते हैं और बताते हैं कि 5000 खुराकें वहाँ पर डंप की हुई थी। जिसके बाद राय के मुताबिक अली जान फौरी तौर पर डॉक्टर अब्दुल्ला आसिफ के मुअत्तली के अहकाम जारी करने के साथ साथ उनके खिलाफ इंक्वायरी के अहकाम देते हैं, मगर इस बीच उनके वो कुछ सिफारशी फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं और उन फ़ोन के आने के बाद मुअत्तली का फैसला ख़त्म करके उनका मुल्तान से तबादला कर दिया जाता है। तो बीरवाला में खसरा की वजह से हलाक होने वाले बच्चों के नाम और उनकी उम्रें मैं आपको बताता चलूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि हमारा हेल्थ निज़ाम के मामला चलाने वाले लोग किस कदर बेरहम हैं। और अब ये भी इतलात मिल रही हैं कि सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 6 हलाक होने वाले बच्चों में से 4 बच्चों की हलाकत गर्मी लगने की वजह से हुई है। तो मैं बच्चों के नाम आपको बताता चलूं और ये साथ साथ आपको बता रहा हूं कि अब ये किस लिए कहा जा रहा है। बुनियादी तौर पर ज़राए के मुताबिक ये इसलिए कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदारान हैं उन लोगों को बचाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो सके। डिप्टी कमिश्नर को तो इनाम के तौर पर मुल्तान भेज दिया गया है। जब डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है, इसी तरीके से महकमा हेल्थ के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो सकती है। लंबे अरसे से पाकिस्तान का एक मसला चला आ रहा है, वो अकाउंटेबिलिटी का मसला है। जब कभी ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, ब्यूरोक्रेसी कहती है कि हम काम नहीं कर सकते इस इन्वायरमेंट में, उस इन्वायरमेंट में ब्यूरोक्रेसी काम करने से इनकार कर देती है जिस इन्वायरमेंट में उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए। और जो अकाउंटेबिलिटी की बात हो, ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की। बल्कि अगर वो 6 बच्चों की हलाकत के बाद भी एक डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर को इनाम के तौर पर उससे भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाए तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ब्यूरोक्रेसी के लिए अकाउंटेबिलिटी कोई अहमियत नहीं रखती, ना उनको कोई खौफ होता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। यही वजह है कि वसीम हामिद सिंधु साहब मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर का चार्ज संभाल चुके हैं। कोई इंक्वायरी उस वाक़े पर नहीं हो रही, कुछ किरदार का तयन नहीं किया जाएगा। जब इंक्वायरी होगी तो उसमें डिप्टी कमिश्नर का कहीं जिक्र नहीं होगा, बावजूद इसके कि वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो तमाम मीटिंग्स को हेड करते हैं, वो तमाम बजट्स की मॉनिटरिंग करते हैं और क्या चीज़ कहाँ क्या मामलात हो रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंतज़ामी तौर पर उन तमाम मामलात को देखें। लेकिन इनाम के तौर पर वसीम हामिद सिंधु साहब मुल्तान पहुँच चुके हैं। मुल्तान पहुँचते ही ये 5000 खसरा की खुराकों का मामला खड़ा हो गया है। इस मामले में भी उनकी खामोशी है, अभी तक उनकी तरफ से कोई बात सामने नहीं आई, कोई एक्शन सामने नहीं आया, कोई इस हवाले से उन्होंने कोई रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं की, क्योंकि पीछे अली जान है। अली जान के होते हुए डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की जरूरत भी नहीं है, वो सोच भी नहीं सकते कि वो जाकर इस मामले में कोई दखल अंदाजी करें या टांग अड़ाएं। तो जो 6 बच्चों की हलाकतें हुई हैं उनके बारे में मैं आपको बताता चलूं और उनकी उम्र भी बताता जाऊंगा। मैं इसलिए उनकी उम्र भी बताऊंगा कि जो साहिब दिल लोग हैं उनके दिलों पर क्या गुजरती है वो देख लीजिएगा। पहली बच्ची का नाम खतीजा है और खतीजा की उम्र सिर्फ 4.5 साल है। खतीजा की वफात 5 मई को खसरा की वजह से हो जाती है। दूसरे बच्चे का नाम रूमान है। रूमान की उम्र महज 3 साल है और रूमान की वफात 10 मई को होती है। खसरा की वजह से रूमान 10 मई को वफात पा जाता है। रूमान ही की 1.5 साला बहन अरूज फातिमा भी हलाक होने वालों में शामिल है। खसरे की वजह से जिन बच्चों की हलाकत हुई उनमें ये 2 बहन भाई रूमान और
ان کی بہن عروج فاطمہ شامل ہیں. 10 مئی کو رومان کی وفات ہوتی ہے تو عروج فاطمہ بھی اس دنیا کو 13 مئی کو چھوڑ دیتی ہے. ایک اور 5 سالہ بچی ہے جس کا نام ختیجہ ہے, اس کی وفات 15 مئی کو ہوتی ہے. 15 مئی کو ختیجہ بھی خسرہ کے ہاتھوں اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہے. 22 مئی کو 2 ہلاکتیں ہوتی ہیں اور 2 بچیاں 3 قصبے سے اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہیں. ان 2 بچیوں کے نام بھی آپ کو بتاتا چلوں, یہ 5 سالہ ماریا بی بی اور 7 سالہ عابدہ بی بی ہے. اس طریقے سے 5 مئی سے لے کر 22 مئی تک یہ 6 بچے اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں, لیکن محکمہ ہیلتھ کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا. سیکٹری ہیلتھ کو جو پورے پنجاب کا سب سے طاقتور سیکٹری ہے اور جو کہتا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں پتہ بھی ہلتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے, اس کو بھی 22 مئی تک اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب سوشل میڈیا پر ان 6 بچوں کی ہلاکتوں کی خبر نہیں آ جاتی. تو یہ ہے ہمارا ہیلتھ کا نظام, یہ ہے علی جان کی کارکردگی, یہ ہے اس ڈی سی کی کارکردگی جسے انعام کے طور پر خانیوال سے پھر ملتان شفٹ کر دیا گیا. اب اس سارے معاملے کو گول مول کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. عبداللہ آصف کا تبادلہ بھی کر دیا گیا ہے, اس معاملے میں بھی کوئی انکوائری نہیں ہو رہی. ڈپٹی کمشنر ملتان کے آنکھیں بھی بند ہیں اور کان بھی بند ہیں اور ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ ان کی ناک کے نیچے خانیوال میں کیا ہو رہا تھا اور ان کی ناک کے نیچے ملتان میں کیا ہو رہا ہے. اور وہ محض 18ویں گریڈ کے افسر ہو کر 19ویں گریڈ کی سیٹ کو انجوائے کرنے کے لیے ملتان میں موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ اس سارے معاملے میں کیا قدم اٹھاتے ہیں. کمشنر ملتان بھی خاموش ہیں. مریم خان اپنی مرضی کا ڈپٹی کمشنر تو ملتان میں لے کر آئی ہیں اور چیف سیکرٹری کو بھی اس ڈپٹی کمشنر کی حمایت حاصل ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا مریم خان, کیا موجودہ ڈپٹی کمشنر اور چیف سیکرٹری ملتان میں یہ ویکسینز کی جو چوری کا معاملہ سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں, کوئی تحقیقات کرواتے ہیں یا نہیں کراتے, یا علی جان کے آگے یہ خاموشی اختیار کر جائیں گے اور محض بلی کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے رہیں گے. اور خانیوال میں ہونے والے 6 بچوں کی ہلاکتوں کے معاملے پر کیا صورتحال سامنے آتی ہے ابھی تک اس کا اندازہ اس بات سے ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ محکمہ ہیلتھ کی جانب سے, سیکٹری ہیلتھ کے دفتر کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 6 ہلاک ہونے والے بچوں میں سے 4 بچوں کی ہلاکت گرمی لگنے کی وجہ سے ہوئی. ہیلتھ ایک بہت بڑا شعبہ ہے اور اس سے عام آدمی براہ راست جڑا ہوا ہے اور اس سے متاثر ہوتا ہے. پنجاب کا محکمہ ہیلتھ ایک شخص کے نرغے میں ہے اور اس شخص کو کوئی نہیں ہلا سکتا. اس کے لیے وزیر اعظم اسے اپنا بیٹا قرار دیتا ہے اور وزیر اعلیٰ اس کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دیتی ہے. لہذا اکاؤنٹیبلٹی کی بات چھوڑ دیں, لوگوں کے بچے مرتے ہیں اس بات کو رہنے دیں. علی جان کے اختیارات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ کے معاملات کبھی درست ہوں گے بھی یا نہیں. یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے ہم اور آپ جواب تلاش کرتے رہیں گے. جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا, ہم ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے اور بتاتے چلیں گے کہ ہیلتھ کے حوالے سے لوگوں کو مسائل کیا ہیں. عام آدمی کے پریشانی اور ان کے مسائل کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. اپنے میزبان شکیل بلوچ کو اجازت دیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور امید ہے کہ آپ اپنا اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیں گے. کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر پروگرام اگر آپ کو پسند آتا ہے اسے لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے, دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. آپ سب کا بہت شکریہ.